Hello everyone, I am Jitendra Tyagi from YourPedia Education. So today I got one very good opportunity to interact with Dr. Shashank Pathak, who is assistant professor in School of Civil and Environmental Engineering at IIT Mandi. So, sir, most welcome Thank you. and thank you for giving us this important time. Thank you. So we will discuss a lot of things. We want to start this discussion with your journey. If you talk about my journey, I did my schooling in Kanpur. I born and brought up in Kanpur. Okay, Then with 12th, I qualified IT JEE exam great. in year 2005. And then I joined IIT Kanpur Civil Engineering, which was my first choice. And And B.Tech in course. BTech program, yes. Okay. And then during my third year, I went for a internship in one of the bridge consulting firm, and there I noted that my knowledge about civil engineering is too limited, and that was not sufficient. Then I decided to convert my program to BTech MTech dual degree. I came back from the internship. I requested my professors that I want to change my program from BTech to BTech MTech dual degree, Okay. so that I can also get more insight into the research in the civil engineering, especially structural engineering. And then I converted program to BTech MTech dual degree, and in 2010 I completed BTech MTech dual degree from IIT Kanpur with a specialization in structural engineering. After completing my dual degree program from there, I joined Larsen and Toubro as a designer in Faridabad office, and there I was involved in designing bridges, especially for the railway tracks. So suppose if there is a railway track and we have to divert the route, so I was given the task of designing the road over bridges uh, to cross those railway tracks. And I designed one bridge which has been constructed in Odisha in Jharsuguda, where these coal plants are there for Vedanta Aluminium Limited. And Okay. so it and I saw that construction, so it gave me immense pleasure. I was very happy. I was enjoying that design life, and because I was very much attached with my professors at IIT Kanpur, so I would like to take the name of very one of the Padma Bhushan awardee, Professor Sudhir Jain, who was the director of IIT Gandhinagar at that time when I was working at L&T. So I was in constant touch with him because he taught me at IIT Kanpur, and he's one of my role model. So he gave me this unique opportunity. He told me, Shashank, why don't you decide your career after testing the flavor of teaching also? You have tested industry. Now it's a time for you to test the academia. So he invited me at IIT Gandhinagar for one semester, Okay. and there I started. There I in at the age of 23, it was my first teaching experience at IIT Gandhinagar, and that was a contractual position because I at that time I have not done the PhD. So then I joined IIT Gandhinagar as assistant research professor for one semester, and I taught engineering mechanics, and it was a wonderful experience. But that was a contractual position, and I was not very sure of that in which particular area I want to do PhD. I did not want to do PhD just because someone said so you should do it. I wanted to do only when it comes within my heart, from within my heart. And then finally I got this chance to join Ministry of Water Resources office in New Delhi Hoj Khas, which is just besides IT Delhi. And it was a R&D organization where I was given the task of doing rock mechanics test in hydropower sector. So basically my job was to go to the hydropower sites in all over India, and in some neighboring countries, for example Nepal and Bhutan, where there are hydropower dams are being constructed. So once you construct a dam, it has to rest on the rock, and when it has to rest on the rock, you have to make sure that rock is good enough
to support that massive structure. So the task of Central Soil and Materials Research Station is to ensure that properties of the rock present at the site are good enough to hold that dam. And I was the part of that team, rock mechanics field investigation. So I used to go in small drifts, small tunnels of 2.5 meter by 2.5 meter and 15 meter deep with my team of scientists, and then we used to do the in situ rock mechanics test. And that was a very interesting experience in my life. I learned actual field testing, which is I consider as a really golden experience. So because my office was just beside IIT Delhi, and by that time when I was working on those kind of structures, then I got very unique idea that because once you talk about these underground structures which are below the ground, especially in the rocks, those are those can be very useful, especially if you want to build underground bunkers. So I was very fascinated about dynamics because in my master's I did earthquake engineering, and at CSMRS I was doing this rock mechanics. So I got an idea of a very unique topic of understanding how a structure will behave if it is built below the ground and there is a nuclear explosion in the air. Okay. So those kind of problems can be important, especially for the defense settlements. And suppose you never know. For example, recent, how the geopolitical scenarios are changing rapidly. Yes. So I think, and I found that very limited research is being done in that area. And then I joined with Professor G.V. Ramana at IIT Delhi to start my research on nuclear explosion induced ground deformation. Okay. So with my job at CSMRS, I was working at CSMRS and I started doing my PhD at IIT Delhi. And then I completed it successfully in 2019. And after I completed this 2019, then I got the opportunity to, as a postdoctoral researcher in University of Brussels in precision mechatronics laboratory. By name, it looks like something related to robotics or mechatronics, but actually they work in the field of dynamics, especially when it comes to control the vibration of structures, especially space structures. For example, if you want to send a satellite in space, so satellite works on very precision data, very precise data. If there is any small deviation in the data of the satellite, all the things that we get in our GPS will be wrong. So we need to control their vibrations to the nanometer level. And when you want to work on those kind of topics, you have to understand the structural dynamics of very flexible structures and to control them. So there, my task was to work on the dynamics of such flexible structures and to understand how those can be controlled, how their vibrations can be controlled. Then I started working on the new technique of using piezoelectric material that we can control the vibration of such flexible structures, which are very popularly used in aerospace and instrumentation. So that was my task at University of Brussels, and it gave me an opportunity to work some of the very intelligent and very positive people at Belgium who work in the field of dynamics, and my collaboration is still active. Great. I recently visited Belgium for 1 month, and there I worked on another problem of tuned mass dampers, which are installed in the very long rise structures. So those are my areas in which I work. Okay, so this was entire journey. Yes. And now And you are just in IIT to end, Mandi. yeah, just to end the journey, not to end the new part of the journey, that I completed my postdoctoral in 2021. Okay. And then I gave the interview for IIT Mandi in March 2021, the first round. And my postdoctoral ended in September 2021. So there was a gap of 1 month, but I was not sure whether I am going to get this position or not. So of course, once you come back to India, you need to have a position somewhere. Yes. In the meantime, I got a position in industry in CoAP. CoAP works in the underground tunnel and metro structures.
So I started working there, but after joining there, within 1 month I got the call from IIT Mandi that I have been selected, and finally I joined in the month of November. 11th November 2021 I joined IIT Mandi. And since after joining IIT Mandi, I started 3 new courses. First course that I started, blast engineering, which was my area. Okay. So that I successfully taught in the first semester. After that, I started a course in rock mechanics, which I will teach once the postgraduate program in geotechnical starts. Then I started a course in uncertainty analysis in civil engineering, which I'm teaching in this semester. And one more course I thought it should be taught to the people, to the students, is that introduction to the profession, civil engineering, that I'm going to teach in the next semester to the second year students. So right now, suppose there is some student who has done BTech from some normal college or anywhere, and he want to join some college, and you want to attract him or her to IIT Mandi Okay. in your department. So what are the research areas in which you are planning to work now? Okay, so my currently, for example, my research students, they are working on different areas related to the dynamics only. So my main area is going to be the dynamics. So dynamics will come. The beauty of dynamics is that you can apply in so many areas. For example, currently I'm applying on blast engineering. Previously, I applied on the earthquake related vibrations. Then it can be extended to wind induced vibrations, sea wave induced vibrations, and vibrations due to the pedestrians or high speed railways. So different kind of aspects can be studied. If you ask me how would I like to invite the student, how would I like to impress the students, so the thing is, the students who are interested in hardcore mathematics and physics, dynamics is for them. Okay. They are going to enjoy it like anything. And So what topics of mathematics and physics so especially currently that topic I am which is also very advanced topic in mathematics, fractional calculus. So fractional calculus is something that is going to be the future of dynamics, because that's what I see. Because if you want to work in the pure dynamics, then because nowadays we are developing so many new types of materials, not like concrete or not like steel, new types of like metamaterials, like viscoelastic materials, which are made of polymers. Buildings are being built, and in even in 3D printing, in future you never know how the material world is going to, because maximum innovation is happening in the material world nowadays. But once you have the material, the next thing comes, okay, the structure. And once you build the structure with a new kind of material, the dynamics is going to change like anything. And fractional calculus is something that generalizes the capacities of the normal structural dynamics, and you can apply on viscoelastic materials, metamaterials, and different types of materials. So that is the area in which I am going to, sir, go in the future. Hi, sir. So, as you said, sir, that structural dynamics is a very important as today's, अगर आप आज के टाइम पे बात जी करें, और इसमें भी 3D प्रिंटिंग जी मटेरियल्स की आपने अभी बात की है, जी सो 3D प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे क्या है हमारे स्टूडेंट्स को। सी 3D प्रिंटिंग के लिए जो सबसे बड़ा एग्जांपल अभी इंडिया में रिसेंटली आया है कि बेंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस है, वो कंक्रीट 3D प्रिंटिंग से पूरा बनाया गया है। सो ऑल्दो मैं मटेरियल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मटेरियल मेरा एरिया नहीं है, बट ये है कि अगर मटेरियल चेंज होंगे तो स्ट्रक्चर का बिहेवियर, उनकी डायनेमिक्स सर्टेनली चेंज होगी। सो आई वर्क ऑन दैट पार्ट। एंड अगर 3D प्रिंटिंग एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि एक तो ये कंस्ट्रक्शन के टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मशीन इन्वॉल्व। आज का जो ज़माना है AI और ML बेस्ड होता जा रहा है, एवरीथिंग इज़ लाइक artificial intelligence. So once you club this artificial intelligence with 3D printing, it is going to revolutionize everything, the construction as such. But even अगर आपके स्ट्रक्चर 3D प्रिंटेड हैं, so of course मटेरियल वर्ल्ड में और भी ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आ रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आ रहे हैं। तो
उस तरह के स्ट्रक्चर्स की डायनेमिक्स कैसी होगी, दैट इज माय मेन कंसर्न, बिकॉज वंस यू हैव मटेरियल, वंस यू हैव 3D प्रिंटेड, उसके बाद क्या? तो मतलब आज के टाइम पे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मोस्टली जो स्टूडेंट्स देखता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज वो देखना चाहता है, तो ही और शी कैन गो इन दिस एरिया, इन दीज एरियाज लाइक डायनामिक्स और 3D प्रिंटिंग में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग न्यूज में सुनते रहे होंगे कि मून सेटलमेंट्स, मार्स सेटलमेंट्स, सो फ्यूचर में उसकी तरफ भी जो है दुनिया बढ़ रही है। और जब हमको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मींस स्पेस आउटपोस्ट बनाने होंगे, मून पे लैब बनाने होंगे, इन दैट केस वो 3D प्रिंटिंग से ही होगा। वहां के मटेरियल्स को लेके 3D प्रिंटिंग से ही करना होगा, रोबोटिक कंस्ट्रक्शंस होंगे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। और अगर आप स्पेस में जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स की बात करते हैं, वहां पे सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर ग्रेविटी कंप्लीटली डिफरेंट है, और डिफरेंट ग्रेविटी इन्वायरमेंट में जो डायनेमिक्स होगी स्ट्रक्चर की, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटी में स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सिविल इंजीनियरिंग है, उसका नाम ही सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सिविलाइजेशन मूव ही तब कर पाएगी जब सिविल इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट होंगे, और अगर सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट होता जाएगा तो सिविल इंजीनियरिंग उसके साथ मूव करती जाएगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ ये मान के चलेंगे सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ घरों को बनाना, ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, वो नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत बियॉन्ड है, इट्स इन इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड। अगर आप किसी से बात करोगे इंजीनियर, तो वो पहली चीज उसके दिमाग में सिविल इंजीनियरिंग आती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में क्या हुआ है कि नंबर गेम के चलते, और जो है एक एक, एक जो कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की एक बूम आई हुई है कि कुछ भी छोटा मोटा करके, उससे क्या हो रहा है कि जो रियली इंटरेस्टेड हैं इस तरह के हार्डकोर इनोवेशंस में, वो लोग छूटते जा रहे हैं, और ये किसी न किसी को तो समझना होगा। और इसमें आप किसी को फोर्स करके सिविल इंजीनियरिंग दिलवा करके और वो करके अगर आप कहते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग करो क्योंकि इसमें फ्यूचर है, मुझे नहीं लगता उससे कोई भला होगा। लेकिन अगर एक आदमी भी आपको मिलता है जो सिविल इंजीनियरिंग दिल से करना चाहता है, उसको पूरा सपोर्ट करना है, उसको माइंड वॉश नहीं करना है कि तुम कुछ और करो क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है। तो लेकिन 10 लोगों को फोर्सफुली सिविल इंजीनियरिंग दिला करके कि तुम डिग्री सिविल इंजीनियरिंग लो, उसके बाद में जाकर के तुम जो है कोका कोला और सामान बेचो जाकर के, वो नहीं करना। ठीक है सर। और ये जो 3D प्रिंटिंग की हम बात करते हैं, तो क्या ये एमटेक के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्टडी करवाया जाता है? इसके लिए अलग से हमको पीएचडी? 3D प्रिंटिंग जो है एक टेक्नोलॉजी है, इट इज जस्ट वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। एमटेक में अगर कोई स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में मास्टर्स करना चाहता है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वो उस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन और 3D प्रिंटिंग में इनोवेशन और जो वर्ल्ड में लीडिंग रिसर्च इनोवेशन हो रहा है, उसको जानने के लिए आपको उसमें पीएचडी ही करना पड़ेगा। मतलब पीएचडी आपके लिए मस्ट है अगर 3D प्रिंटिंग में आप स्कोप चाहते हैं अपना। अगर स्कोप चाहते हैं देन यू शुड डू पीएचडी, और देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप आल्सो। मतलब आने वाले टाइम पे हम बोल सकते हैं कि सर 3D प्रिंटिंग हो गया, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स हो गया, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला है। Yes. और जो आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग जस्ट नॉट कि आपने बिल्डिंग बना दी है या आरसीसी के स्ट्रक्चर बना बहुत दिए, बियॉन्ड है वो, इससे तो बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। तो अब जो मोस्टली व्यूअर्स है, मैं जहां तक जानता हूँ कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा 3D प्रिंटिंग के बारे में, बिकॉज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो ठीक है सर, 3D प्रिंटिंग के बारे में बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर में आपने बताया अभी पोस्ट ऑफिस में। हाँ, अभी रिसेंटली मैं न्यूज में देख रहा था कि बेंगलुरु में एक जो पोस्ट ऑफिस पूरा जो है वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 3D प्रिंटर क्या है, जैसे आपका ये प्रिंटर है, आपने कुछ टाइप किया और उसने आपको क्लिक किया, आपने प्रिंट दे दिया। 3D प्रिंटिंग में क्या है, आपने टाइप किया कि मुझे इतने बाई इतने बाई इतने का कंक्रीट का ब्लॉक चाहिए, वो मशीन गई, उसने ब्लॉक आपको बना करके दे दिया। बढ़िया सर, बढ़िया। और तो आपने जो स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारे, ठीक है, आपने बताया आपके अंडर में काम जी, तो आप AIML में भी कुछ काम करते हैं? AIML में मैं काम नहीं करता हूँ, बिकॉज AIML बेसिकली जो मेरा काम करने का जो एरिया है मेनली, वो बहुत ही फिजिक्स और मैथमेटिकल ओरिएंटेड है। और AIML के लिए आपको डेटा ड्रिवन
वर्क करना होता है, इन विच यू नीड टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ डेटा कलेक्शन एंड देन टू एनालाइज द डेटा एंड देन उस डेटा से आप क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उससे क्या निकाल के लाना चाहते हैं. AIML इज समथिंग फॉर दैट. AIML इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर सभी AIML करेंगे तो बेसिक फिजिक्स और मैथ्स करने वाले भी लोग चाहिए, मेरा ये मानना है. तो मैं मानता हूं कि क्लास में अगर आप 60 लोगों की क्लास है तो सभी लोग फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठ पाएंगे, किसी को बीच में बैठना होगा, किसी को पीछे बैठना होगा. तो अगर AIML आज के टाइम पर आप फर्स्ट बेंच मानो तो इट्स ओके, गुड, बट मैं फिजिक्स और मैथ्स साइड में काम करना चाहता हूँ फंडामेंटल लेवल पे. ग्रेट ग्रेट. तो एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज सोसाइटी में ये इस चीज का चला हुआ है, जरूरी हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, AIML आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे का पूरा सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर से क्या आवाज आती है. अगर आप वाकई में सिंगर बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको सिविल इंजीनियरिंग फोर्सफुली करना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि उसका भी अपना एक महत्व है. और अगर आप वाकई में AIML इन सिविल इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको डायनेमिक्स नहीं करनी चाहिए. लेकिन आप बनना सिंगर चाहते हैं और आपके पास दो ऑप्शन दे दिए गए, AIML कर लो या स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स कर लो. फिर किसी ने आपको बोल दिया AIML में करो, आपका डायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा मन लग रहा था, लेकिन किसी ने कहा नहीं उसका स्कोप नहीं है, AIML का स्कोप है, तो आप AIML, तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी और अल्टीमेटली ना आप AIML अच्छा कर पाएंगे, आपका सिंगिंग छूट ही गया और डायनेमिक्स तो फिर भूल ही जाइए. इनिशियली जो है अभी जो आपने बात बताई गाइडेंस से रिलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, वो मतलब कि उसमें थोड़ा हमारा सोसाइटी का भी हाथ है कि नहीं मिल पा रही है, फिर पेरेंट्स का भी हाथ हो जाता है, और पेरेंट्स आते कहाँ से हैं, उसी सोसाइटी का हिस्सा है. तो मुझे कई बार लगता है कि पेरेंट्स को भी अपना थॉट प्रोसेस बदलना होगा. तो आज के टाइम पे मोस्टली यही समाज हमारे सोसाइटी के अंदर है कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है तो बीटेक के बाद या तो उसको जॉब मिल जाए या कोई वो अपना यूपीएससी क्रैक कर ले, आईएएस. यस, एग्जैक्टली. मतलब मोस्टली लोग इसी लाइन में ही आना चाहते हैं. करेक्ट करेक्ट. वो प्राइवेट कंपनीज में अपने आप को फ्यूचर में देखने चाहते हैं. और मेजर जो पॉइंट निकल रहा था वो बस सैलरी से रिलेटेड है कि स्टार्टिंग में आपको इतना पैकेज नहीं मिल रहा है. ये फैक्ट है. जब मैं LNT में, जो मेरा लाइफ का पहला जॉब था, मेरी जो पहली सैलरी आई थी, मुझे मेरे अकाउंट आज भी वो चेक मेरे पास रखा हुआ है, मतलब कि उसका फोटो खींच करके, दैट वाज जस्ट 22,000 रुपीज. मतलब कि मुझे 22,000 रुपए मेरे का मुझे चेक मिला था पहला, जिसका मैंने, ये मेरी लाइफ की पहली सैलरी थी. बट उस समय मेरे कई दोस्त थे IIT कानपुर के जो कि सिविल इंजीनियरिंग छोड़ चुके थे और बहुत हाई पेइंग जॉब्स में, जिनके पैकेजेस मतलब कि उस समय देख करके लगता था कि 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ या और भी ज़्यादा हो सकता है. तो मुझे कभी वो नहीं आया कि मैं सिर्फ 22,000 पर मंथ और वहाँ वो 22 लाख पर एनम, इतना जो फर्क था, तो मुझे कभी इसलिए नहीं आया क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल के प्रति जो मेरी चाहत थी, वो जो चाहत थी वो पैसे को डोमिनेट कर गई. तो वो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पीछे हूँ उनसे या मैं उनसे. होता क्या है कि आदमी कंपेरिजन में पड़ता है, उसके बाद फिर वो जो सारी समस्याएं वहां से चालू होती हैं. लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे तो भाई कुटिया में रहना है, उसके बाद भी मुझे वही करना है जो मुझे पसंद है, तो वो फिर आपको सब कुछ मिल गया. तो सर इसमें ऐसा ये भी हो सकता है कि अगर मान लो स्टूडेंट कोई फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, वो चाहता है कि यार मैं फाइनेंशियली भी अपने आप को सही रखूं और साथ में मैं कैरियर के अंदर अपने आप को ग्रोथ करूं. हो सकता है. तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि होता क्या है कि मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, और जब मैं PhD कर रहा था, मेरे फादर किडनी की डिसीज से जूझ रहे थे, और मतलब बहुत टफ समय था मेरी फैमिली का. उसमें हमको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती थी. उस समय मेरी सिस्टर भी जॉब नहीं कर रही थी. फाइनेंशियली मतलब कि सिर्फ फादर अर्निंग थे और मैं जस्ट अर्निंग स्टार्ट किया था अपना करियर. दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मुझे PhD तो करनी थी, तो मैंने PhD भी की और मैंने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू किया, जिससे मैं फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ. तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्लान्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे, या तो आप अपनी जॉब ऐसी लीजिए जो कि आप जो मेन करना चाहते हो उसको वो सपोर्ट करती है. ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जॉब का कुछ है, फैमिली का कुछ है और आपके एम्बिशंस कुछ है. क्योंकि जो 20 से 30 साल का जो एज का टाइम होता है,
सिर्फ वही एक टाइम होता है जिसमें आपकी पूरी लाइन सेट हो जाएगी। 30 के बाद कुछ नहीं होता और 20 से पहले आप कुछ कर नहीं पाओगे। 20 से 30 का ही पार्ट होता है। अब उसमें आप फाइनेंस मैनेज भी करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, हार्डशिप्स भी आएंगी। अब आप हार के थक करके बैठ जाओगे तो फिर बैठ ही जाओगे, और अगर लड़ गए तो 30 के बाद ही उसका परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक और सर, मोस्टली जो स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि सर हम रोबोटिक्स की तरफ भी थोड़ा सोच रहे हैं, एमटेक में वो थीसिस वगैरह वो करते हैं, इसमें क्या स्कोप है? अगर रोबोटिक्स में बहुत स्कोप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे फ्यूचर में अगर मान लो आपको दूसरे प्लैनेट्स पे कंस्ट्रक्शन करना है या ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करना है, वहां पे रोबोटिक कंस्ट्रक्शन ही एक पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, रोबोटिक्स अपने आप में एक ब्रांच है, इट्स नॉट ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स का बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप रोबोटिक का एप्लीकेशन किस डायरेक्शन में जाके करना चाह रहे हो। जीआईएस के अंदर वो बता रहे हैं कि जीआईएस रोबोटिक्स इस लाइन के अंदर हाँ, मतलब कि जो आपका जियोग्राफिकल सर्वे है वो भी रोबोटिकली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ड्रोन सर्वे कर रहे हो आप, दैट इज द काइंड ऑफ, इन माय ओपिनियन दैट इज द काइंड ऑफ रोबोटिक सर्वे। आप जा रहे हो डेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन ईच एंड एवरी सिंगल ब्रांच ऑफ सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही 6-7 सब ब्रांचेस हैं। तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप, मोस्टली जो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सर मैं स्ट्रक्चर में एमटेक करूंगा या मैं मोटर सोर्स में जाऊंगा, मोस्टली जियोटेक की तरफ भी जाते हैं, कुछ सर्वे की तरफ भी, जियोमेटिक्स की तरफ भी नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आपको। इसीलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये नया कोर्स स्टार्ट किया है, जो प्रपोज किया है, इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन। उस कोर्स की पूरी जो एक भूमिका, जो उसका रीजन है कोर्स को स्टार्ट करने को, वो यही है कि एक स्टूडेंट जो 12th पास करके आया है, उसको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, उसको ये नहीं पता है कि सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया कितनी बड़ी है। तो ये कोर्स उसको उस दुनिया का एक दर्शन कराएगी, उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है कि किस फील्ड में उसका मन लगता है। बिल्कुल। तो ये कोर्स की बहुत जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने सेकेंड ईयर के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो मतलब ये आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है? ये कोर्स मतलब कि लास्ट सेमेस्टर में प्रपोज हुआ था, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं उसको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, सेकेंड ईयर गेट के स्टूडेंट्स। हमारे व्यूअर्स को कुछ वीडियोस वगैरह? हाँ, वीडियो के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी लेक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्लास्ट इंजीनियरिंग पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने सॉलिड मैकेनिक्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाया, फिर उसके बाद अभी मैं अनसर्टेनिटी एनालिसिस इन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट आरजी के नाम से। हाँ, स्टूडेंट आरजी का जो नाम आया वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स एंड अनसर्टेनिटीज रिसर्च ग्रुप का एक्रोनिम है, तो वहां से आया स्टूडेंट आरजी। आरजी मीन्स रिसर्च ग्रुप। उस नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे मैंने IIT मंडी में जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं इन क्लास, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उस पर अवेलेबल हैं, और सब कुछ अवेलेबल है। तो नॉट ओनली फॉर IIT स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट जो IIT में नहीं आ पाया है किसी कारण से और बाहर है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए सारा वीडियो मटेरियल अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रीली। सो स्टूडेंट आरजी का सर्टिफिकेट यूट्यूब के ऊपर, ग्रेट फैकल्टी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट आरजी। बिल्कुल। तो जो मैं अब पढ़ाऊंगा ये सेकेंड ईयर को, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन, उसके भी सारे वीडियोस मैं उस पर अपलोड करूंगा, और वो चैनल पे जो भी मैं लेक्चर IIT मंडी में लूंगा वो आते रहेंगे। ओके सर, सो आपसे बात करके मतलब बहुत इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू। और डायरेक्शंस मिली, मतलब जो सुनेंगे उनको ना क्लियर। जो कंफ्यूजिंग पार्ट है जो अभी आपने बताया कि मैं कोर्स लेकर आने वाला हूं, इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू। आई होप कि जिस पर्पज से किया जा रहा है वो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।